But do you think AI is going to replace human? I mean, specifically art. Other industries I know. But do you think AI can replace art? I don't think so. People who are paying a lot of money, I think they are paying it for the process, for the name of the artist, for the authenticity, for the क्या कहते हैं जो चीज़ आपको readily available नहीं मिले. लोग अपने लाखों खर्च करते हैं घर में ऐसी चीज़ लगाने के लिए जो सबके पास नहीं है. नहीं. तो वही मार्केट हम लोगों को आगे बढ़ाएगी और वही लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट करेंगे. आई थिंक इट्स हियर टू स्टे बट नॉट इन द सेंस दैट कि आर्टिस्ट को एकदम ही लाती मार दी जाए. Yeah, and additionally, I would also like to say, and I agree with this. So there's something which I often put my 2 cents on. IP is something that no one can copy. You know what IP Yes, is, of course, intellectual intellectual. property. So what you're doing is your IP. So this is, I think, कोई भी technology है, any form of art, be it music, dance, live performances. True. अच्छा आप गाने फिर भी सुन पाओगे, रेडियो पे सुन पाओगे, CDs आ जाएंगी, AI अब AI किशोर कुमार के गाने चलते हैं Instagram पे, a lot of people make that. But live performances and live paintings and original art, I think this is always going to stay. Yeah. But yes, it also creates a lot of hindrances in the industry. But I think, ठीक है यार, अब मतलब कुछ नहीं कर सकते. Anyway, so talking about one more thing I saw on your Instagram was that you had done an ad with Epson and you had taken a print of something and stencil से बनाया था, ऐसे कुछ किया था, and you had done that. Why am I getting to that is because I want to talk about this very controversial topic which has been trending on Instagram, which is called using AI or using print in original art and not claiming to use such things. What do you have to say about that? Not taking names. मैं तो ये कह रही हूँ सच बाहर आ जाता है. Because देखो specifically talking about not claiming, you have to tell people कि आपका process क्या है. आपको इसके लिए बहुत माइंडफुल होना पड़ता है कि जो आप डाल रहे हो बहुत सारे यंग माइंड्स हैं जो देख के उससे इंस्पायर हो रहे हैं या फिर मोटिवेट हो रहे हैं करने के लिए. बट आपने चोरी छुपे प्रोसेस कुछ और बताया है, वो बेचारे उस रास्ते पे निकल गए हैं, उनको वो अचीव ही नहीं होगा, वो चाहे कितनी मेहनत कर लेंगे. तो वहां पे आप किसी के सपने को तोड़ रहे हो इनडायरेक्टली. तो वहां पे लोगों को माइंडफुल होना चाहिए इस चीज के लिए. अदरवाइज ये सारे टूल्स जैसे Pinterest हो गया या फिर ओपन जैसे साइट्स होती है जहाँ से आप रेफरेंसेस ले सकते हो. ऑलवेज ट्राई फॉर इंस्पिरेशन. ठीक है, इंस्पिरेशन लेना एक बहुत फाइन लाइन होती है इंस्पिरेशन लेने और कॉपी करने में. तो इंस्पिरेशन सपोज आपने जैसे मेरी वीडियो को लेके बोला कि मैंने उसमें लोट फ्लावर्स के बहुत सारे वो निकाले थे. तो आपने सपोज आप 10 निकाल लो, 10 फोटोज निकाल लो, उस 10 में से एक पेटल भी करके अलग बनाओ, आपका अलग ही बनेगा आर्टवर्क. तो वो हाँ उस चीज के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. And it means that you're telling people that okay, if I'm doing this, I'm doing it with all my conviction. The thing is, I mean, why did this topic become a trending topic? Because it is cheating. It is as bad as a financial scam or something of that sort. Because me as a customer, imagine if I've paid for a certain art form, मुझे पता चले कि सारी तो original भी नहीं है. Authenticity certificate मिला है, मुझे सब मिला है. मेरा तो आर्ट इंडस्ट्री पे से ही विश्वास उठ जाए कि आगे जो आर्टिस्ट जो कर रहे हैं उनका बिकना रह जाएगा. एक्चुअली रह जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा इन सब चीजों से. बट इसको कैसे ठीक भी कर सकते हैं? I mean, Diksha, if I think about it, because such practices will happen, and I don't think there is any way to avoid these. But how can we minimize such things? Don't you think, for example, I mean, this is my opinion again, in any industry, be it law, be it finance, there's a Ministry of Finance, all these industries, they have an institution who keeps a check on this. Yeah, screening of the artworks, filtration, कोई जाके देखे, समझे, फील करे. हाँ, सब ऐसी, मतलब मैं तो ब्लंटली बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट क्या होता है कि आर्टिस्ट ने साइन करके दे दिया, बट कोई काउंसिल ही नहीं होता ना. एग्जैक्टली. सो कैसे, मतलब डू यू थिंक देयर शुड बी अ काउंसिल फॉर दिस? ट्रू, ऐसा बिल्कुल मैं भी इसी भावना से सहमत हूँ कि होना चाहिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आके चेक करे या फिर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो स्पेसिफिकली फॉर द आर्टवर्क्स दैट आर हेफ्टिली प्राइस्ड. ये बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क्स हैं जो बहुत महंगे बिक रहे हैं, बट कैसे पता लगता है? बहुत जैसे MF हुसैन की पेंटिंग्स हैं, अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम कि हमारे पास है, उनकी हमारे पास, बट उसको कैसे पता करना है कि ये उन्हीं की है, वो प्रिंट तो नहीं है, नकली तो नहीं है. तो वो
आई थिंक है ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस चीज को देखते हैं. But those are, yeah, individuals who do that, but they still can't make out the authenticity of any artwork because so when we talk, let's talk about MF Hussain. So we also sell MF Hussain this and that. So how do we get to know? उसका एक पूरा provenance होता है कि मतलब for example 2001 में एस बंदे ने ली थी, 2017 में दीक्षा ने ली, फिर आगे जाके इसने ली. सो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनता है जो साइंड एंड स्टैम्प होता है from each and every art gallery it has been bought from. So this is a good method because then you know कि if I want to check the originality, I can call person one. But when we talk about this art market where it is accessible to anyone and everyone, I've seen so many players come into the market. हाँ जी हम पेंटिंग बना के बेचते हैं. उनके लिए क्या? बेच तो वो भी ओरिजिनल आर्ट रहे हैं एंड वो भी तो आगे जाके कहीं ना कहीं बेचेंगे. तो उनके लिए कैसे हम कर सकते हैं? मतलब डू यू हैव एनी आइडियाज? वही है कि पर्सनली तो कितने ही लोगों को आप खड़ा कर लोगे इस चीज हाँ. को देखने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे जो खरीद रहा है, ऑब्वियसली जो इस नीश का, इस मार्केट का है, वो एक बंदा एक और अफोर्ड नहीं करेगा कि तुम, अब तुम्हें पैसे दिए, अब तुम जाके चेक करके आओ. वो उसको जो खरीद रहा है उसको खुद को भी थोड़ा बहुत ना नॉलेज होनी जरूरी है. खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करे कि क्या डिफरेंस है एक प्रिंटेड कैनवस में, एक खुद से बनाए हुए कैनवस में. आप खरीदने से पहले जाओ, सब कुछ ऑनलाइन मत करो, जाओ देखो क्या क्या है. आर्टिस्ट से बात करो. बात करने, मेरे को तो लगता है बात करने से पकड़ा जा सकता है झूठ. और मैं कहता हूँ आप कहीं तो हाँ कि आपने कैसे किया हो, क्योंकि जो भी आप इन रिसेंट टाइम्स अभी जो भी हम कंट्रोवर्सी सुन रहे हैं उसमें पता लग जाता है. बातों में ही बातें निकल आती हैं कि बोला यहाँ कुछ, किया कुछ, दिखाया कुछ और, कहा कुछ और. तो लोगों को समझ दो बेवकूफ नहीं है. एंड मैं थोड़ा एंडोर्समेंट करना चाहता हूँ. दिस इज व्हाई आर्ट गैलरीज एग्जिस्ट गाइस. Yes. Why should you not buy from online spaces and online vendors and online fuck all people? Because over there you can't. Art is all about touch and feel. Unless I touch and feel Diksha's artwork, I'm never going to pay an XYZ price for it. Exactly. This is how the art market works. And that's why art galleries exist, so that you can come here, you can touch it, you can feel it, and then end up buying. Yeah. So never buy from online spaces, guys. नहीं, मेरे से ले लो. नहीं, that is all. Yeah, I mean, नहीं, but now तो दीक्षा के भी काम will be around. Yeah, हाँ. ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर इन्होंने नहीं रखे तो you can directly ask. Guys, my team will get in touch with Diksha. No, I mean, hopefully we will. But yeah, so it is all about that.